Chapter number 13, direct and inverse proportion. What is the meaning of direct and inverse proportion? We will do it in chapter number 13. We are going to start. Let us see that what is the meaning of direct proportion first of all. But whenever we are talking about some situation, we talk about two things, that I give the money to the shopkeeper, and if in exchange I'm getting my notebooks. Okay. Similarly, I give the money to maid, and in exchange she does work at my home for certain hours. That means the situation in which we are having two variables, at least तीन भी हो सकते हैं, but at least two variables होने चाहिए. There we talk about the proportion ratio. आपको पता है, आपने किया हुआ है आगे. There we say that there we will talk about the proportion when there are two variables in particular situation are given to us. अब अगर बात करें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो जैसे कि मैंने अभी बताया that if I give 50 rupees to a shopkeeper, I'm going to get suppose 5 copies. ठीक है, 50 rupees में I purchase 5 copies, या आप कह सकते हो 10 rupees में I purchase 1 copy. That means 1 copy cost rupees 10. Suppose I am giving 50 rupees to shopkeeper, then I will be getting 5 copies. अगर मैं शॉपकीपर को 50 रुपीज देती हूँ, देन मुझे कितनी कॉपीज मिल जाएंगी? 5 कॉपीज. तो यू सी दैट देयर आर टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन से हैं? जो अपनी वैल्यू को वेरी करते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है. पहले कॉपीज का नंबर 10 था, देन कॉपीज का नंबर 50 हो गया. पहले मनी जो थी वो ₹1 थी, तो उसके बाद मनी क्या होगी? पहले रुपीज थे 10 और कॉपीज का नंबर 1 था, फिर ₹50 हो गए और कॉपी का नंबर 5 हो गया. यानी कि इस रुपीस ने भी अपने आप को वेरी किया और कॉपीज ने भी अपने आप को वेरी किया. तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो वेरिएबल हो गए. वन रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड अनदर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक्स. देयर आर टू वेरिएबल्स इन दिस सिचुएशन. वन रिप्रेजेंट द कॉस्ट and the other represent the number of notebooks. ठीक है. अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, as I say that there are two variables, they vary, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है. अब वैल्यू जैसे ही एक वेरिएबल ने अपने आप को इंक्रीज किया, यानी कि 10 रुपीज 50 रुपीज बना, वैसे ही दूसरे वेरिएबल ने भी अपने आप को इंक्रीज कर लिया, यानी कि 1 कॉपी कितनी बन गई? 5 कॉपी. So when we say that the two variables are in direct proportion or direct variation, if one increase and others also increase. लिख लो पहला point. If increase in one implies the increase in other. If increase in one implies the increase in another. एक और एग्जांपल लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल आई एम टेकिंग टू गेट यू द आइडिया ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि एक चीज बढ़े तो दूसरी बढ़े.
पहला हमने पॉइंट नोटिस किया दैट इफ वन इंक्रीज अनदर आल्सो इंक्रीज। अब सेकंड पॉइंट हम नोटिस करेंगे दैट डिक्रीज इन वन इंप्लाइज द डिक्रीज इन अनदर। देखना कैसे, सपोज person is traveling with the speed of 60 kilometer and with the speed of 60 kilometer the person is able to cover the distance of 4 kilometer। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ठीक है, तो अगर वो अपनी स्पीड को घटा ले तो नेचुरली डिस्टेंस भी उसका कम कवर होएगा। ठीक है, अगर एक ट्रेन की स्पीड कम हो जाए तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे अपनी प्रिस्क्राइब्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचने का हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, और डिस्टेंस क्या होता है, कम कवर होएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही स्पीड डिक्रीज हुई कवर्ड डिस्टेंस भी डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स सेकंड केस हुआ इफ डिक्रीज इन वन वेरिएबल, if decrease in one variable implies the decrease in another। If decrease in one variable implies the decrease in the another variable, increase implies increase and decrease implies decrease, then we say that the two variables, they are directly proportional। Two variables are directly proportional। रेशो का ही होगा। अब जैसे अगर मैं एक टेबल प्रिपेयर करूं, आपको पता है प्रोपोर्शन की आपने डेफिनेशन करी थी, व्हेन टू रेशियोज बिकम इक्वल इट इज कॉल्ड proportion। No doubt I am telling you about the definition of the direct proportion and inverse proportion, but we know that two ratios when they become equal it is called proportion। तब हम उसको क्या बोलते हैं, proportion बोलते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो इसकी तरफ तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सपोज कॉपीज 1 है और कोस्ट हो गया 10, कॉपीज 2 कोस्ट 20, कॉपीज 3 कोस्ट। और आप देखोगे कि ये सारे प्रपोर्शन में हैं क्योंकि इनको डिवाइड करके इनकी रेशियो सेम आ रही है। सबका आंसर 1/10 है। These all are in proportion because all answer is same 1/10 and we are getting the answer by dividing the first number of the ratio by the another। हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके हमारे पास जो है वो रेशियो आ रही है। सो इसका मतलब अगर हम अब मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन करवाऊंगी इसको, अगर हम इसको मैथमेटिकली रीड करें देन टू वेरिएबल्स x and y are said to vary directly। Two variables x and y are said to vary directly if x upon y is equal to k। That means if we divide the first variable by the second variable by putting any of the values, the answer remains k। k means constant, कुछ भी हो सकता है constant, पर रहेगा constant। constant की definition क्या होती है? It remains the fixed same। यानी कि अगर 1/10 है तो उसको डिवाइड किया 1/10, 2/10 की कटिंग की, 2/20 की कटिंग की 1/10, 3/30 की कटिंग की 1/10, 4/40 की कटिंग की 1/10। That means in every situation, in every condition, you are getting this division as a constant। हो सकता है, मैंने डिवीजन और मल्टीप्लाई का ध्यान रख के क्या ना।
आगे मल्टीप्लाई वाली भी, पर इनवर्स में मल्टीप्लाई आनी है तो इसलिए आप याद रखो। डायरेक्ट में डिवीजन होएगी वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय द and we get last bench key point, and in that case read your mass properly. In that case we will be getting division of the two variables to be equal to some क्या constant. किसी दो वेरिएबल्स का डिवीजन जब एक कांस्टेंट के इक्वल हो तब हम कहते हैं वेरिएशन कौन सी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन. Increase in one implies increase in another. Decrease in one implies decrease in another. And if division of two numbers remains constant throughout the table, then we say that this is the case of direct proportion. बेटे रितेश एक बेंच आगे आ जाओ. That is the case of direct proportion. अब अगर हम बात करें इनवर्स प्रपोर्शन की, लेट अस डिफाइन इनवर्स प्रपोर्शन. इनवर्स प्रपोर्शन की अगर हम बात करें, सपोज आई एम, पहले आप एग्जांपल समझो. Suppose I want to construct my house and I ask the 8 laborers and they said that we'll finish the work of construction within suppose 4 days. उन्होंने कहा कि हम 4 days में आपका रूम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे 8 लेबरर्स में. बाय चांस दो लेबरर जो हैं, दो लेबर पर्सन जो हैं वो बीमार हो गए या इंजर्ड हो गए, मान लो 6 रह गए. तो मुझे ये बताओ क्या उनको कंस्ट्रक्शन में उतना टाइम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा. हाँ मैं वो भी उसी पर उस पर भी मैं आ रही हूँ. यानी कि एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज हो गया, या एक डिक्रीज हुआ दूसरा इंक्रीज हुआ. जैसे ही लेबर के पर्सन हमारे घर पे कम आएंगे उतना ही टाइम ज्यादा. आपने नोटिस किया होगा जब भी कभी किसी के घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, कम मजदूर आते हैं तो मम्मा कहती है कि ये तो अब रात को जाएंगे, 2 दिन ही हैं, बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, है ना, होता है ना ऐसे. तो सेम केस इज हियर दैट इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स दे गेट डिक्रीज, then number of hours or number of days will get increase. That means decrease in one implies increase in another. पहले इसका नीचे लिख लो स्टार डाल के. if decrease in one implies increase in another, decrease in one implies increase in another, decrease in one implies increase in another. तब हम बोलते हैं that the variables are forming inverse proportion. चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज अभी मैंने डिक्रीज के बाद इंक्रीज, अब मैं इंक्रीज के बाद डिक्रीज बताऊंगी. मान लो हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है, और उनमें हमने सर्टेन नंबर ऑफ चपातीज जो है वो डिवाइड किया. 4 लोगों ने सपोज करो कि मिलके 8 चपातीज खाई. 8 ही चपातीज हैं बॉक्स में, 4 गेस्ट आए, खा लिया. मान लो गेस्ट का नंबर इंक्रीज हो जाए, सपोज 10 गेस्ट हो गए या फिर 8 गेस्ट हो गए, चपातीज उतनी है तो हर एक के हिस्से में कम आएंगी. दैट मीन्स एक चीज इंक्रीज करी तो दूसरी डिक्रीज होएगी, कि जैसे आपने बंदे इंक्रीज कर दिए उनका हिस्सा भी कम होगा. अगर आप ओनली सिंगल चाइल्ड है पेरेंट्स का तो सारी प्रॉपर्टी उसकी है, पर अगर 2-3 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, कम मिल जाएगा हिस्सा, राइट. यानी कि इंक्रीज इन वन इंप्लाइज डिक्रीज इन अनदर.
इंक्रीज इन वन इम्प्लाइज डिक्रीज इन अनदर। यानी कि आपने एक बात याद रखनी है, जब इंक्रीज इंक्रीज इंप्लाई करे, डिक्रीज डिक्रीज इंप्लाई करे, तब डायरेक्ट प्रपोर्शन। बट अगर इंक्रीज से डिक्रीज और डिक्रीज से इंक्रीज हो जाए, देन अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम डेस्टिनेशन पे पहुंचने का लगा 6 आवर्स। अगर मैं स्पीड को बढ़ा लूं, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो नेचुरली टाइम क्या लगेगा, कम। अगर हम अपनी स्पीड, जब भी कभी हम स्कूल से लेट हो जाते हैं तो हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हमारा स्कूल पहुंचने का टाइम हमारा कम लगे, है ना। सो यू इंक्रीज द स्पीड एंड एट द सेम टाइम गेट डिक्रीज्ड, यानी कि इंक्रीज इन वन इंप्लाइज डिक्रीज इन अनदर। दैट इज केस ऑफ कौन सा प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। यस जयंत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जयंत मैम, काइंडली एडजस्ट द कैमरा। बेटे थोड़ा बेंच इधर, इज इट ओके नाउ? ओके, चलिए अब मैं मैथमेटिकली टेबल के थ्रू इस चीज को समझाने लगी, इनवर्स प्रपोर्शन को। जैसे हमने x एंड y टू वेरिएबल्स अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में थे, देन x अपॉन y इक्वल टू k बना था। अब हम इनवर्स प्रपोर्शन की, इज देयर एनीथिंग टू लाफ अबाउट लास्ट टू बेंचेस? Arman, you are a good student, but in the company of other, you are spoiling yourself. आप अलग बैठा करो सबसे। चलो, अब हम बात करते हैं x एंड y दो वेरिएबल, उनकी टेबल की। ये अब इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज बोथ, you get the same number. Okay, that means write down two variables x and y, two variables x and y set to form inverse variation or proportion if x into y is equal to k. That's why कृतिका मैंने उधर बोला था कि उधर मत लेके जा, याद रखने। तो फिर याद रखने का तरीका भी तो रखना ना हमें, कि डायरेक्ट में डिवीजन एंड इनवर्स में मल्टीप्लाई। हाँ जी, के मतलब अगर दो नंबर्स को लगातार जो है हमारे पास बॉक्स वाले दो नंबर लगातार उनको मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आए तो इनवर्स प्रपोर्शन, और अगर डिवाइड करके आंसर सेम आए तो डायरेक्ट प्रपोर्शन। एंड इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इंक्रीज इंप्लाइज इंक्रीज, डिक्रीज इंप्लाइज डिक्रीज, एंड इन इनवर्स प्रपोर्शन इंक्रीज इंप्लाइज डिक्रीज एंड डिक्रीज इंप्लाइज इंक्रीज। बस आपने नटशेल में ये वाली चीजें याद रखनी है। और इनके बीच में जो रिलेशन हमने किया कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में रिलेशन डिवीजन का कांस्टेंट के इक्वल होगा एंड इनवर्स प्रपोर्शन में रिलेशन मल्टीप्लाई का के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। इनवर्स में मल्टीप्लाई का रिलेशन के इक्वल और डायरेक्ट में डिवाइड का रिलेशन जो है वो के इक्वल। Is it okay? You see at page number 203, do this में
There is a table. एंगल्स जब आप मेजर करोगे 15 मिनट्स पास पे 90 डिग्री है, 30 के बाद 180 हो जाएगा, 45 270 और 60 मिनट पे 360 डिग्री। आप इफ यू ऑब्जर्व द वॉच तो आप देखोगे 15 मिनट्स पे 90 डिग्री कवर करती है, तो 30 मिनट्स में 180, यहाँ पे 270 एंड टोटल 360। 90 का गैप जो है वो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं सेंटर पे, 30 मिनट्स में 180 डिग्री एंड 45 मिनट में 270 डिग्री एंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री। एंड ही सेज फिल दिस टेबल, आई हैव फिल्ड दिस टेबल। टाइम अपॉन एंगल की अगर आप बात करें तो डू दे इंक्रीज टुगेदर, इज दिस इज सेम एवरी टाइम, ठीक है, इज दिस प्रोपोर्शनल एंड ऑल दैट। लेट अस सी हाउ व्हाट ही सेज। कहता क्या ये जो t अपॉन a है, this is 15 by 90, this will be 1 by 6, 30 by 180 again 1 by 6, 45 upon 270 1 by 6, 60 by 360 1 by 6. You see that when you divide these two, that means when you divide time by angle, it remains the same. अगर दो वेरिएबल्स को डिवाइड करके आंसर सेम रहता है, इसका मतलब टाइम एंड एंगल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये टेबल है एजिस का कि 5 इयर्स अगो आपके फादर की एज क्या थी, आज क्या है, आज से 5 साल बाद क्या होगी। सिमिलरली मदर की, एंड यू फाइंड द वेरिएशन एंड सी वेदर दे आर फॉलोइंग डायरेक्ट और इनवर्स। ट्राई दिस में आइए पेज नंबर 204। टू 204 पेज का ट्राई दिस फर्स्ट। सी x and y, the values are 20, 40, 17, 34, 14, 28, 11, 22, 8, 16, 5 and 10. He says you are given the values of the variables x and y like this. Check whether they are directly proportional or not. इस केस में आपको x by y सबका निकालना पड़ेगा। This is 1 by 2, सेकेंड का भी 1 by 2. So एंड में सारा निकाल के एंड में आप क्या लिखोगे, here x by y is equal to 1 by 2. x by y is equal to 1 by 2 for all x and y. जितने भी x and y टेबल में दिए हुए हैं सबके लिए x by y इक्वल टू 1 by 2 आ गया, कांस्टेंट आया। डिवीजन अगर कांस्टेंट की इक्वल आ गई, दिस बेटे राइट डाउन एंड डोंट लाफ, दिस इंप्लाइज x and y वेरीज क्या, डायरेक्टली, x and y वेरीज डायरेक्टली। right?
ये बाद में देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस करवाए नहीं होते। हाँ जी, अच्छा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पार्ट में देखो क्या आ रही है डिवीजन, सेम नहीं आ रही सब जगह। दिस थर्ड पार्ट में भी नहीं है ना, डिफरेंट आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को लिखना कैसे है, लेट मी टेल यू। थर्ड पार्ट करते हैं। See the third part. फाइंड तो आप करोगे x अपॉन y को। So you see in the last two division, you are getting the constant, that means division ratio to be the different. So how you will write, let me tell you. You will write it like here, x upon y is not the same for all x and y. सारे वैल्यूज के लिए ये सेम नहीं है. This implies they do not form direct proportions. They do not form direct proportions. डायरेक्ट प्रोपोर्शंस इनकी नहीं है. Let us start with exercise 13.1. हाँ कर लो. कौन सा एग्जाम्पल 1? ये अभी आएगा, अभी क्वेश्चन में आएगा. एक्चुअली हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू अननोन्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं बॉक्स में से. वही क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सरसाइज के. देन आई विल टेल यू. चलो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.1. चलो कल करेंगे शुरू.